हेलो स्टूडेंट, वी स्टडी द 12th स्टैंडर्ड चैप्टर दैट इज aldehyde ketone and carboxylic acid। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। टुडे वी लर्न द सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehyde and ketone। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरोस्ते। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehyde and ketone। In previous lecture we see the some physical properties of aldehyde and ketone, and then we see the nature of carbonyl group in aldehyde and ketone। ये हमने देखा। तो जब भी हमने नेचर स्टडी कर रहे थे तो जनरली हमने देखा कि aldehyde and ketone shows the nucleophilic substitution reaction more reactive than electrophilic substitution reaction, because due to the steric hindrance and inductive effect, and due when nucleophilic addition reaction is found, there is an intermediate is the alkoxide anion, and it is the more stable than carbonium ion। जब इलेक्ट्रोफाइल का जब वहां पे अटैक हो जाता है तो वहां पे जो इंटरमीडिएट हमें मिलता है दैट इज द this is carbocation, and when when nucleophile is react with carbonyl group, there is a formation of alkoxide anion, and this alkoxide anion is more stable than this carbonium anion, and due to this property or due to this reason, the aldehyde and ketone show generally nucleophilic addition reaction rather than electrophilic addition reaction। Generally aldehydes are more reactive than ketone due to steric hindrance and inductive effect। अगर हमने कीटोन का ग्रुप देखा, कीटोन का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 अल्किल ग्रुप, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा बढ़ता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ जाता है। ड्यू टू दिस रीजन द aldehydes are more reactive than ketone, इसीलिए ड्यू टू दिस रीजन। बट aldehyde shows the nucleophilic addition reaction, बट जो भी हमको प्रोडक्ट मिलता है वो लेस अमाउंट में मिलता है एज कंपेयर टू aldehydes। जनरली the formaldehyde is a very reactive aldehyde than other aldehydes। अदर aldehyde के कंपैरिजन में हमने देखा तो formaldehyde more reactive है, because in formaldehyde contain hydrogen and there is a very less steric hindrance, and यहाँ पे steric hindrance का कोई क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्किल ग्रुप अटैच है ही नहीं। एंड सेकेंडली इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी कम है एज कंपेयर टू aldehydes, another aldehydes and ketone, इसीलिए formaldehyde is more reactive for nucleophilic addition reaction। Generally all this compound shows the nucleophilic addition reaction, बट उनका जो प्रोडक्ट आता है तो aldehyde के साथ हमने रिएक्शन किया तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा आता है, कीटोन अनदर aldehyde के साथ हमने उसकी रिएक्शन दिखाई तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो लेस आता है, एंड कीटोन हमने लिया तो उसका और भी कम प्रोडक्ट हमें मिलता है, लेस अमाउंट में हमको उसका प्रोडक्ट मिलता है। इसीलिए hence we are says the formaldehyde is more reactive than another aldehydes and ketone। तो चलो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आज जो केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। First chemical property of aldehyde and ketone is the nucleophilic addition reaction। यहाँ पे कार्बोनिल जो हमारा ग्रुप है aldehyde और कीटोन और फॉर्माल्डिहाइड में प्रेजेंट, उसके ऊपर किसका अटैक होने वाला है? न्यूक्लियोफिलिक स्पेसिस का, न्यूक्लियोफाइल स्पेसिस का, इसीलिए वी आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज देयर इज अ फाउंड एडिशन रिएक्शन। वहां पे हमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से देयर इज अ टेक्स प्लेस द एडिशन रिएक्शन वहां पे होती है, हेंस वी आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे हम जो फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल जो लेने वाले हैं दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड और फॉर्मासाइनाइड, हम इसे फॉर्मासाइनाइड भी कहते हैं। फर्स्ट है एडिशन
addition of hydrogen cyanide. Addition of hydrogen cyanide, that is the HCN. We are called it is hydrogen cyanide or formonitrile. You can call it is as formonitrile. Formonitrile. This is our formonitrile. That is the addition of HCN, that is the hydrogen cyanide or formonitrile addition. When we are taking the aldehyde, अगर हमने aldehyde लिया, we can also take the formaldehyde, acetaldehyde, कौन सा भी हम ले सकते हैं. जनरली aldehyde का जो फंक्शनल ग्रुप रहता है, that is the RC double bond O. This is our aldehyde. अगर aldehyde के ऊपर हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन हो जाती है in presence of base, we are using here base because this base abstract this proton and there is a formation of carbanion species, that is the Cn minus and H plus, and this Cn minus species react with carbonyl carbon and there is a formation of alkoxide anion. तो यहाँ पे हमें क्या होता है, alkoxide anion form होता है and this alkoxide anion reacts with this hydrogen and there is a formation of aldehyde cyanide. वहाँ पे जो हमें मिलता है that is the aldehyde cyanide or aldehyde cyanohydrin because there is a presence of OH minus group, hence we are called as the cyanohydrin. Aldehyde, this is our product is aldehyde cyanohydrin. This is our aldehyde cyanohydrin. इसका एग्जांपल लेते हैं हम, that is the acetaldehyde में CH3 C double bond O. Yes, this is our acetaldehyde compound. When acetaldehyde reacts with cyanohydrin or reacts with hydrogen cyanide or formonitrile, that is the HCN, in presence of base there is a, we can call, it is not H plus, it is a OH minus or base, we can call it as a base, that is the OH minus base, or we can also use another base, that is the NaOH भी हम यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल आर बेस. हियर वी कैन यूज द NaOH भी हम यूज कर सकते हैं और KOH भी, दिस इज आवर बेस. ये बेस और ओनली OH माइनस ऐसा भी हम इसे इसके ऊपर लिख सकते हैं. फिर एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज आवर anion, this is our cation. This reacts with this, there is a formation of then alkoxide anion and this hydrogen anion reacts with this hydrogen. This alkoxide anion reacts with hydrogen and there is a formation of OH minus, CH3 OH, then H and here Cn. इसका नेम क्या आता है, acetaldehyde cyanohydrin. Acetaldehyde cyanohydrin. दिस इज ऑल आर रिवर्सिबल रिएक्शन. अगर हमने ये प्रोडक्ट लिया और इसके ऊपर बेस का अटैक दिखाया तो वी नो हमको सिमिलरली ये प्रोडक्ट मिलने वाला है. अगर हमने इसके ऊपर बेस की रिएक्शन की तो हमको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, और अगर हमने ये सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट इट इज अ कैटलिस्ट ये लिया तो हमको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है. दे बोथ आर रिवर्सिबल रिएक्शन. यहाँ पे क्या रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम कीटोन का. सेम ऐसा ही मैकेनिज्म है इन कीटोन. अगर कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज द कीटोन साइनोहाइड्रिन. ये हमें मिलता है. उसकी जनरल रिएक्शन हम देखते हैं एंड देन वी टेक द वन एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन. सेकेंड है कीटोन के ऊपर क्या रिएक्शन होती है, R C double bond O R. दिस इज आवर कीटोन ग्रुप. दिस इज आवर कीटोन. When ketone reacts with HCN, that is the hydrogen cyanide,
This is also reversible reaction in presence of base or OH minus. We can write the NaOH or KOH भी हम लिख सकते हैं. There is a formation of same product or same intermediate. Only difference in the this R group. Only difference in this because in aldehyde presence of hydrogen, in ketone presence of two alkyl group. तो इसका नेम आता है कीटोन साइनोहाइड्रिन. इसका क्या नेम है? कीटोन साइनोहाइड्रिन. इसका भी वन एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द एसीटोन. जनरली एसीटोन, दैट इज द CH3 C double bond O CH3. This is our acetone. When acetone reacts with hydrogen cyanide, that is the HCN, in presence of base, this is also reversible reaction. There is a formation of acetone cyanohydrin. This is our product. CH3 C CH3 OH minus CN. This is our acetone cyanohydrin. We can also take the aromatic aldehydes और aromatic ketone का भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं. तो सिमिलरली जो प्रोडक्ट आता है वहाँ पे क्या, वहाँ पे जो ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन रहता है उसे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन एंड दिस अल्कोक्साइड आयन एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम HCN. HCN से ये वन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है एंड हमको सिमिलरली वही प्रोडक्ट मिलता है. ओनली चेंज इन दिस टू अल्किल ग्रुप एंड इन aldehyde वन चेंज ऑफ इन अल्किल ग्रुप. इतना ही चेंज होने वाला है, बाकी ऑल प्रोडक्ट्स आर हमको सेम मिलने वाले हैं. और जैसे उनकी कार्बन चेन इंक्रीज हो जाएगी, सिमिलरली प्रोडक्ट पे भी उनकी कार्बन चेन इंक्रीज हो जाएगी. यही हमको वन बाय वन अनदर एग्जांपल में करना है. और वी कैन राइट द मोर एग्जांपल in your notebook by taking the another aldehyde and another ketone. We can also take the aromatic aldehyde and aromatic ketone. ये भी आप लिख सकते हैं. सेकेंड एग्जांपल सेकेंड रिएक्शन देखते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की. दिस इज द एडिशन ऑफ सोडियम बाय सल्फेट. एडिशन, दिस इज also same reaction. This is nucleophilic substitution, nucleophilic addition reaction ही है वो भी. Second nucleophilic addition reaction is B, addition of sodium bisulfate. That is the sodium NaHSO3. Addition of sodium bisulfate. That is the NaHSO3. NaHSO3. That is the sodium bisulfite. Sodium bisulfite. अगर इसकी रिएक्शन हो जाती है एल्डिहाइड्स कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? जनरली वी टेक द जनरल एल्डिहाइड, दैट इज द RC डबल बॉन्ड OH एंड अनदर इज द RC डबल बॉन्ड O R कीटोन. ये हम लेने वाले हैं. वी कैन इन योर नोटबुक वी कैन राइट द मोर एग्जांपल्स. आर यू गेटिंग दिस? फर्स्ट एग्जांपल, general reaction, that is the RC double bond OH plus NaHSO3. There is also, because the sodium sulfite itself it is a base, ये एक बेस ही है तो इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट ही हो जाता है, that is the H plus. तो इसकी क्लीवेज कैसी हो जाएगी? H plus NaSO3 minus, that is the NaSO3 minus H plus. We can write this type of structure and this is our nucleophile. Nucleophile reacts with carbonyl carbon and this bond shift here and this alkoxide anion abstract this proton and there is a formation of aldehyde sodium bisulfite. That is the aldehyde sodium bisulfite OH. There is a formation of NaSO3 here one H. दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन. ये भी क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है. और हमको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज द एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड. अगर इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है. व्हेन वी आर टेकिंग द
इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर ये जो प्रोडक्ट है इसकी हम बेस के साथ और मिनरल एसिड HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको सिमिलरली यही प्रोडक्ट मिलने वाला है। एंड व्हेन वी आर नॉट यूजिंग द मिनरल एसिड and we are taking the aldehyde as a substrate, then we make the this product. And when we are taking the aldehyde sodium bisulfite, it is the substrate in the presence of mineral acid. अगर इसकी रिएक्शन बाद में मिनरल एसिड के साथ हो जाती है तो हमको यही प्रोडक्ट मिलता है। तो दिस इज आल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। ऑल सिमिलर, पहले जो हमने एडिशन ऑफ HCl देखा वहां पे भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पे भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। सेकेंड देखते हैं aldehyde ketone, that is the RC double bond OR. This is our ketone. अगर कीटोन की रिएक्शन हो जाती है सोडियम बाइसल्फेट के साथ तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या रहता रहेगा NaSO3 माइनस। वो भी देखते हैं हम कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है। दिस इज आल्सो NaSO3, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो रही है। दिस न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद कार्बोनिल कार्बन, this bond is shift towards the oxygen and again this oxygen react abstract this hydrogen from sodium bisulfite and there is a formation of aldehyde sodium bisulfite product. Ketone bisulfite product. This is the ketone bisulfite कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। दिस इज और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। अगर ये बोथ आर रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रहा वन रिएक्शन में। अगर हम इसके रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं मतलब ये इट इज यूज्ड एज एन सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। अगर हमने लिया मिनरल एसिड भी ले सकते हैं और बेस भी ले सकते हैं। फिर वी आर यूजिंग द मिनरल एसिड, दैट इज द HCl, इट इज कॉल्ड एज द मिनरल एसिड। अगर हम इसकी मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, दैट इज द RC डबल बॉन्ड OH। ये था हमारा फर्स्ट, जब हमने सबस्ट्रेट था हमारा वही हमको मिलता है, प्लस NaCl प्लस SO2 प्लस H2O। ये हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट। मतलब जब हम जो हमने सबस्ट्रेट यूज किया था वही हमको प्रोडक्ट मिलता है, ओनली चेंजेस इन साइड प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट है तो वो तो क्या, SO2 इट इज अ गैस, इट इज गो इन एयर, दिस इज आवर सॉल्ट एंड वी कैन सेपरेट दिस aldehyde एंड दिस सॉल्ट एंड वाटर। वी कैन इजीली सेपरेट वाटर बाय फिल्ट्रेशन मेथड। हम फिल्ट्रेशन मेथड करके वाटर को भी अलग कर सकते हैं इस कंपाउंड, इस प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट से हम इसे अलग कर सकते हैं और हमको जो प्योर aldehyde जो हमने सबस्ट्रेट लिए यूज किया है वो भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब वी कैन चेंज दिस प्रोडक्ट, इट इज इनटू आवर सबस्ट्रेट। दिस इज आवर रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर सिमिलरली हमने ये इट इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट, अगर हमने ये सबस्ट्रेट यूज किया तो हमको यही प्रोडक्ट मिलता है। देखो यहाँ पे हमने मिनरल एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी। हमने यहाँ पे मिनरल एसिड के साथ की, यहाँ पे हम बेस के साथ करेंगे, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमको यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है, कीटोन RC डबल बॉन्ड OR प्लस Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। ओनली चेंजेस इन द साइड प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने जब एसिड लिया तो ओनली चेंजेस इन साइड प्रोडक्ट आता है, बट जो हमने यहाँ पे जो सबस्ट्रेट लिया था वही हमको मिलने वाला है। और अगर हमने देखा when ketone reacts with sodium bisulfite there is a formation of ketone sodium bisulfite and again this sodium bisulfite reacts with aqueous base, there is also formation of ketone, hence it is called as a reversible reaction। इसलिए ये both reaction क्या है, reversible reaction है। तो आज के लिए हम ये दोनों रिएक्शन पढ़ के आज हम ये पे स्टॉप करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन ऑफ aldehyde एंड कीटोन, यही पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरोज। तो आज हम ये पे स्टॉप करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।